So, welcome again. Today, we are going to see the different, functions which can be used in lists. Yes, in the last video, we have seen what list is and how to manipulate and how to work with list. Now, there are a lot of functions which actually helps you to, work with list. So, those functions we are going to see. Now, the first function is now suppose and this is one list which already exists. You have created a list with around, let's say, 5 or 4 elements. Now, I want to add more element here after creation. So if you want to add more element, there is a simple function called append, which you can use, which will add at the end. Simple. I don't know why the pen is not working properly. Okay, done. So append basically helps you to add something at the bottom. So the function is like this: append. So you have the list. You just say list, which list you want to add. List one dot append what the value you want to add. So that particular thing will be added into the list. You can add 1, 2. You can even add a list inside a list, like this list one dot append. Here you can easily you can add. Here you can add a list inside the list, so the new list will have a list inside the list, so that new list could be added. So that's as easy as that. We can just see this in function. We can just say list 1 is equals to, we create a list and we say 20 56 45 slash done. So list 1 is created for me right now. अब इस list 1 में we want to add, so we will simply say list 1 dot append. हमें जो भी ऐड करना है, अगर हमें कोई नंबर्स ऐड करना है तो हमने बोला 45, चलो 45 एग्जिस्ट करता है, लेट्स से 48 get list 1 dot append. Now the new list is added, so 48 is added in that particular list. So you can add as much as possible. Whatever is, you can add more to it. Let's say we want to add 54. So we have given this bracket. So clear. So after append, the next function which we are going to see is this, is extend. Now what extend does? So more or less append can add only one element. If you want to add more than one element, you can use extend. So even you can have a list which you can pass to extend, and that extend could add that particular list. ये हो सकता है. One function is insert. If you want to insert it sorry, if you want to insert at some specific position, दूसरे पोजीशन या तीसरे पोजीशन या चौथे पोजीशन पे आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो you can do it. Now this is it. Like now ये append है, but if I want, हम यहाँ पे एक ही साथ I can add 3 more than 1. तो इस तरीके का ऐड करने के लिए, if I want to add like this, I cannot use append, because append can only add one element. But if you want to add more than one element, in that case you need to use extend function. Extend can add more than one element. More than one element. That is where extend actually comes handy. So we'll just see extend. नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू, में एक साथ ऐड कर दे रहा था, अगर हमें बीच में कुछ घुसाना है तो वी हैव ए फंक्शन कॉल्ड इंसर्ट टू ऐड इन बिटवीन. टू ऐड इन बिटवीन, बीच में ही कहीं घुसा सकते हैं. सिंपल सा बात है. सो इंसर्ट बेसिकली लेगा किस पोजीशन में घुसाना है और लेगा क्या नंबर्स घुसाना है. सो दो चीज़ इट विल टेक, एंड उस पर्टिकुलर पोजीशन में सो जितने भी नंबर्स होंगे दैट विल बी राइट शिफ्टेड. मान लीजिए कोई नंबर, अगर हम ये लिस्ट है 2 4 2 5 2 4 2 7
2427 एंड दिस इज अ लिस्ट। अब हमने सेकेंड पोजीशन में 25 घुसा दिया, तो 2401 25 then 2 then 7, this will be the new list because we are inserting something in between. काउंट हमने ऑलरेडी वी हैव सीन कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं। अगला है एक फंक्शन इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन यूज़ होता है अगर आपके पास एक लिस्ट है और आप एक कोई नंबर खोज के निकालना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, हम निकालना चाह रहे हैं कि ये 25 किस पोजीशन पे है, वेयर एक्चुअली इट एग्जिस्ट। तो वी विल यूज़ दैट फंक्शन इंडेक्स और हम मेंशन करेंगे हमें कौन सा नंबर का खोज के निकालना है। तो वो जैसे ही मेंशन करेंगे वो निकाल के दे देगा कि ये किस पोजीशन पे है, विच पोजीशन इट एग्जिस्ट इन। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क। अब फटाफट लेट अस सी, वी हैव ऑलरेडी सीन एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट एंड इंडेक्स। अब इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। डन। सो लिस्ट वन डॉट अपेंड, वो अपेंड कर दिया, एक नया लिस्ट आ गया। नाउ इसमें अगर हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ओके, सो वी कैन एक्सटेंड लिस्ट। एक हम कोई लिस्ट 2 बना लेते हैं। लिस्ट 2 इज इक्वल टू लेट अस हैव एनीथिंग, एनी नंबर 34 कॉमा, ठीक है जी। हाँ, हमने कुछ ऐसे बना लिया और फिर हमने बोला कि वी वांट टू ऐड लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। किसको एक्सटेंड करना है? लिस्ट 1 को एक्सटेंड करना है। और लिस्ट 1 को एक्सटेंड करने के साथ उसमें क्या डालना है, तो हमने जो भी लिस्ट 2 में जो भी रखा है उसको ऐड कर दो। डन। नाउ लेट अस सी व्हाट लिस्ट 1 हैव। सो लिस्ट 1 इज एक्सटेंडेड। 48 54 के बाद these three numbers are added, 43 45 47. So extend is basically used to extend it to add more than one numbers. अब हम इंसर्ट करके भी देख लेते हैं। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, बीच में हमें कुछ घुसा देना है। मानो मैंने बोला सेकेंड पोजीशन पे घुसा दो, कुछ घुसा दो, रश्मि। इट्स नॉट माई गर्लफ्रेंड नेम बट जस्ट राइटिंग इट, 2 रश्मि लिख दिया। अब देखें एक्चुअली बात माना, इसमें बात मान दिया, करेक्ट है। सेकेंड पोजीशन पे उसने इंसर्ट कर दिया उस पर्टिकुलर। आई कैन हैव एनीथिंग, आई मीन इट्स नॉट वेरी ट्रू कि अभी अब मुझे वो ना ये कैरेक्टर ही घुसाना है। आई कैन हैव एनीथिंग, आई कैन हैव सेकेंड पोजीशन पे ना 87 अगेन। नाउ देखिए लिस्ट 1 में क्या है। सो रश्मि के पहले 87 आ गया, ठीक है, 87 इज एडेड हियर। डन। सो इंसर्ट करके देखता है। अब हमने इतना तो कर दिया है, अब हम एक काउंट करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिस्ट दे दिया है ना, लिस्ट 1। सो लिस्ट 1 डॉट काउंट 45 बोला तो उसने खोज के बता दिया कि 45 पूरे लिस्ट में 2 बार आया है। सो आई विल जस्ट रेक्टिफाई। काउंट फंक्शन इज यूज टू जस्ट काउंट द नंबर्स, काउंट द ऑकरेंस ऑफ द नंबर, सॉरी, काउंट occurrence, count occurrence of number or element, whatever if I want to ask। सैश तो मुझे ऐसे लेना पड़ेगा ना। सो शैश एक बार आया है। सो काउंट पे से रिटन नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन एडेड। नाउ अब हम बोलें कि काउंट के बदले मुझे इसका इंडेक्स बता दो भैया, ये कहाँ पड़ा हुआ है। सो लिस्ट 1 डॉट इज इंडेक्स हैश, वो 5th पोजीशन पे पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो नंबर काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन पे पड़ा हुआ, ठीक है। सो दीज आर वेरी हैंडी फंक्शंस विच एक्चुअली मेक्स लाइफ वेरी ईजी फॉर अस। सो काउंट फंक्शन कंप्लीट हो गया है, इंडेक्स कंप्लीट हो गया है। नाउ देयर आर 2 मोर। एक है रिमूव, जो आपको हेल्प करता है रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स। सिर्फ पहला वाला हटेगा, सिर्फ पहला वाला हट जाएगा। और अगर वैल्यू नहीं मिलता है तो रिमूव फंक्शन विल गिव यू एन एरर, सिंपल, ठीक है।
और पॉप फंक्शन इज मोर और लेस लाइक सेम, जैसे हम वी टेक द एलिमेंट आउट, सो हटा देना है किसी पर्टिकुलर ये को, उस नंबर्स को हटा देना है, तो हम पॉप फंक्शन यूज़ कर लेंगे। रिमूव और पॉप में एक डिफरेंस है कि रिमूव हटा तो देगा बट आपको कुछ दिखाएगा नहीं, पॉप हटाएगा भी और दिखाएगा भी, दैट इज अ डिफरेंस। सो दैट इज वी कैन सी इट। यहाँ पे हमने जैसे बोला लिस्ट 1 में वी सेड दैट रिमूव एनीथिंग, हमारे पास जो भी है 45 था ना एक नंबर, वी कैन रिमूव 45। नाउ अगर हम लिस्ट 1 को देखना चाहेंगे तो हमारे पास लिस्ट 1 में से देखिए पहला जो 45 का ऑकरेंस था जो रश्मि के बाद था, ये 45 हट गया है, ठीक है, हमने वो रिमूव बोला। अब एक बार फिर से हम रिमूव यूज़ करते हैं, फिर से हम इस बार करते हैं, इस बार से पॉप में हमें एलिमेंट बताना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट में है। सो सॉरी, इसके लिए हमें 45 का एलिमेंट चाहिए, 0 1 2 3, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट। सो उसने लिस्ट 1 पॉप मैंने बोला 8, तो उसने 45 आउटपुट भी दिया और साइमल्टेनियसली उसने वो पार्टिकुलर नंबर हटा भी दिया वहाँ से। सो इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। सो पॉप और रिमूव में ये डिफरेंस है। ओके, सो देर आर मोर फंक्शंस विच आर देयर। पहला है रिवर्स। रिवर्स बेसिकली रिवर्सेस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सिंपल सा बात है। अब करके देखते हैं हम लोग फटाफट रादर देन वेस्टिंग टाइम। अब हमारे पास ये लिस्ट 1 था, करेक्ट, ये लिस्ट 1 है, इसको हमें सिंपल सा रिवर्स कर देना है, तो हमने बोला है लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, सिंपल। और अब हम लिस्ट 1 देखेंगे तो ये देखिए नंबर एकदम रिवर्स हो गया, जो 67 लास्ट में था वो पहले आ गया है, 43 इधर आ गया। सो लिस्ट रिवर्स सिंपल सा बात है, उल्टा कर देता है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो यू हैव टू यूज अ फंक्शन कॉल्ड शॉर्ट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि शॉर्टिंग एक्चुअली दिक्कत इसलिए आ जा रही है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है इसमें दोनों चीज़ है, स्ट्रिंग भी है और इंट भी है, कैसे शॉर्ट करेगा, दिक्कत आएगी ना। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो दूसरा हमारा है उसको शॉर्ट करके हम देखते हैं, विच इज़ लिस्ट 2। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें हम कुछ खुरापात करते हैं। लिस्ट 2 डॉट अपेंड 21 कर दिया, ठीक है, लिस्ट 2 डॉट अपेंड 2 कर दिया। अब हम लिस्ट 2 देखते हैं, ठीक है। नाउ लिस्ट 2 डॉट शॉर्ट, सो लिस्ट 2 इज शॉर्टेड 2 21 43 45 67, ठीक है। सो शॉर्टिंग करने के लिए आप उसके अंदर के एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। वहाँ पे अगर डेटा टाइप अलग हो जा रहा है ना तो उसको शॉर्टिंग में दिक्कत आएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास मैक्स है, मिन है, अगर हम देखो उसको बोलते हैं लिस्ट 2 डॉट मैक्स। क्यों नहीं मैक्स क्यों नहीं दिखा रहा है वो, ओके सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये मैं वही गलती बार बार कर दे रहा हूँ। मैक्स ब्रैकेट में लिस्ट 2 67, मिन लिस्ट 2 तो लिस्ट 2 क्या मिनिमम उसने निकाल के दिखा दिया। इसमें एक और है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन सम। अगर हमारे पास लिस्ट है तो हम सम कर देंगे, तो सम विल गिव मी इंटायर, उसके अंदर का जितना भी नंबर्स है ना वो सम करके दिखा देगा। सो दैट इज़, अगर हम अपने ओरिजिनल लिस्ट में कोई छेड़खानी नहीं करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये जो लिस्ट 2 पड़ा हुआ है
ये ऑलरेडी अभी तो हो गया है शॉर्टेड। अगर शॉर्टेड नहीं था और हम जो दूसरा लिस्ट बनाना चाह रहे थे उसको हम शॉर्टेड रखना चाह रहे थे, तो देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड सॉर्टेड जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हम शॉर्टेड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली जो नया लिस्ट का नाम हम बोलेंगे लिस्ट टू, वट एवर इट इज़, या लिस्ट टू, और लिस्ट टू के अंदर वी कैन जस्ट से शॉर्टेड। शॉर्टेड किस लिस्ट को शॉर्ट करना है उसका नाम पास कर दिया, तो ये जो लिस्ट यहाँ से आएगी वो शॉर्ट की हुई आएगी। ओरिजिनल लिस्ट वन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट लिस्ट टू के अंदर जो लिस्ट आएगी दैट विल बी अ शॉर्टेड लिस्ट। सो आई होप दिस फंक्शंस आर वेरी क्लियर। नेस्टेड लिस्ट हम रख सकते हैं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है अभी जब हम ऐड कर रहे थे तो, कि लिस्ट वन के अंदर हम एक और लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन हैव 1 2 3 4, कितना भी लिस्ट ऐड करना चाहे वी कैन ऐड दैट लिस्ट। 0 1 2 3 4 5th, ये वाला लिस्ट 5th नंबर इज अ list itself. To access the element of a nested list in list one, we have to specify two indices, list ij. तो इसके अंदर करने के लिए हम बोलेंगे list 5 0 1 2 3 4 4,2, तो ये बीच वाला निकल के आ जाएगा। 4,3, तो ये बीच ये वाला निकल के आ जाएगा। सो वी कैन हैव अ नेस्टेड लिस्ट। कॉपी बहुत आसानी से हो सकता है, सिंपल। लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन बोलेंगे तो नया लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट वन डॉट अपेंड हमने 10 बोला, सो बेसिकली इट विल ऐड 10 ब्लैंक स्पेसेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ पॉइंट है कि लिस्ट वन और लिस्ट टू ऐसे बोलते हैं ना, तो ये एक नया लिस्ट नहीं बनता है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट ओनली creates a pointer or a reference to particular list one. So list one and list two refer to the same area और उसी एरिया पे पॉइंट आउट करता है अगर हम लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट टू बोल देते हैं तो। दैट इज हाउ इट डज। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई लिस्ट बनाया और ये लिस्ट यहाँ पड़ी हुई है जिसका 0x112 एड्रेस है और ये L1 है, और हमने बोल दिया L1 इज इक्वल्स टू L2। दैट मीन्स L2 विल ओनली पॉइंट हियर, it will not create any space. So saying L1 is equal to L2, we are only creating a reference to our original list. So any changes in L2 will change L1 and any changes in L1 will also change L2. So that is how it done. So it alias बन जाता है। Done. So we can create copy or clone of a list as a distinct object, but there are 3 methods अगर आप कॉपी करना है तो। पहला मेथड तो है आप ऐसे बोल दो, एक बीच में ना कोलन डाल दो। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे कि हम जब सिर्फ इतना पार्ट डालेंगे, हम जब सिर्फ इतना पार्ट डालेंगे लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 यहाँ तक, तो वो रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे तो 0 से n एलिमेंट जितने एलिमेंट हैं दैट विल बी कॉपीड एंड लिस्ट टू विल बी अ सेपरेट लिस्ट इन दैट केस। सो एक ये ऑप्शन है। दूसरा है वी कैन यूज़ द लिस्ट, हम जो पहले पढ़े हुए हैं, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ओल्डर लिस्ट। सो नया लिस्ट बन जाएगा, कॉपी हो जाएगा इस नाम से। थर्ड मेथड है वी कैन यूज़ अ कॉपी फंक्शन। तो कॉपी फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको कॉपी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। And we can say new list is equal to copy dot copy and the older list, जो भी old list का नाम है that could be copied. Now let us quickly see that on the screen कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। Although ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है but we will try to finish it as possible, as early as possible. Now we have list 2 here, ये हमारे पास है। अब हमें list 3 create करना है। So हमने list 3 बोला, list 3 is equal to list 2 and then we will say this. Now this will create list 3 which is a copy of list 2, but list 2 dot append हमने किया और list 2 में हमने कुछ नंबर डाल दिया और अब हम लिस्ट 2 देखेंगे तो लिस्ट 2 में तो ये नंबर आ जाएगा बट लिस्ट 3 में नहीं आएगा बिकॉज लिस्ट 3 इज अ कॉपी ऑफ लिस्ट 2। सो ये एक तो ये फंक्शन है, एक
ये तरीका है जिसे हम आराम से कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, हमने बोल दिया ऐसे लिस्ट 4 जो नया लिस्ट है हमको कॉपी करना है लिस्ट 2 का, तो यहाँ पे बोलेंगे लिस्ट और ब्रैकेट में लिस्ट 2। ये भी एक फंक्शन है, दिस इज अगेन अवे, ये भी लिस्ट 4 में डाल देगा जो भी लिस्ट 2 के अंदर था। और तीसरा फंक्शन है, उसमें हम इंपोर्ट करेंगे कॉपी को पहले तो, एंड देन वी विल से लिस्ट 5 इज इक्वल्स टू कॉपी के अंदर का फंक्शन है कॉपी, जिसको हम बुला रहे हैं कॉपी डॉट कॉपी, और इसके अंदर वी विल जस्ट पास कि कौन सा लिस्ट को आपको कॉपी करना है। सो नाउ दिस इज लिस्ट फॉर यू। सो these are the 3 methods. Just go back and see how this method can be applied. All method are good. मुझे पर्सनली ये पहला वाला पसंद आता है, जो कि हम उसमें फटाफट काम कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। द फर्स्ट वन। ओके, नाउ लिस्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Whenever a list is passed as an argument to a function, we have 2 scenarios. Element of the original list may be changed. Changes made to the list of a function are reflected back in the calling function. Or if the list is assigned a new value inside a function, then the new list object is created and it becomes a local copy of the function. Any changes made inside the local copy of a function are not reflected back to the calling functions. Important point. ठीक है, कि जैसे ही हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, वो एक नया कॉपी क्रिएट हो जा रहा है उस पर्टिकुलर लिस्ट का, जो हम कॉपी हमने देखा था तरीके से। और अगर हम कुछ लोकल कॉपी में चेंजेस कर रहे हैं तो ओरिजिनल लिस्ट में कॉपी नहीं नज़र आएगा। सो दैट सिंपली मीन्स दैट इज हाउ दिस इज एक्टिंग, कि हमने एक फंक्शन यहाँ बनाया और हमने इस फंक्शन 1 को कॉल कर लिया यहाँ से, और इसके अंदर हमने एक लिस्ट 1 पार कर दिया। सो लेट इट बी, वी कॉल्ड अ function 2 and we are passing something like list 1. अब ये list 1 यहाँ जाएगा इस फंक्शन में, तो list 1 जो भी आ रहा है उसकी एक और कॉपी तैयार हो जाएगी, ऑल्दो उसका नाम हम जो भी देंगे list 2। अब हम list 2 में कुछ भी हम चेंजेस कर रहे हैं, न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, ये जब वापस लौट के आएगा तो list 1 विल रिमेन इंटैक्ट। वाई? बिकॉज इसकी नई कॉपी है जब हम पास करें। सो दिस इज वन वे। एक दूसरा तरीका है कि हम चाहते हैं कि हम लिस्ट को जब पास करें ना, तो वो यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहा है वो भी यहाँ पे दिखे। यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करें तो द सेम इज वॉट एवर चेंजेस इज डन हियर इज रिफ्लेक्टेड हियर। वी विल सी गोइंग फॉरवर्ड कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली डू इट, बट पॉसिबल है, कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, डन। सो एनी चेंजेस मेड इज विजिबल देयर। नाउ लिस्ट में मैनिपुलेशन, दीज आर द थिंग्स। हमने अपेंड देखा, इंसर्ट देखा, गिवन लिस्ट में इंसर्ट करके देखा, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो देखा, डिलीट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट किसी पोजीशन से, वैल्यू आउटपुट करते हुए, बिना करते हुए, शॉर्ट करने देखा, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, लिस्ट को डिस्प्ले किया। सो दीज आर द functions which we saw. Now this is the end of this chapter. लिस्ट में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वी कैन ऑलवेज कम एंड डिस्कस, और हम वी कैन इनफैक्ट अभी नेक्स्ट वीडियो जाएगा, इसमें हम लिस्ट के ऊपर हम 3-4 प्रोग्राम्स करेंगे विच विल हैव मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए। आपका खुद का ज्ञान का अर्जन अगर कुछ हो रहा है, इफ़ यू आर adding some value, we are adding some value into your memory, your intelligence, your logic, your understanding. Kindly do like and subscribe. मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, वंदे मातरम।